آزاد کشمیر میں احتجاج اور مسائل کے حل کی تلاش، حکومتی وفد کے جوائنٹ ایکشن کمیٹی سے مذاکرات جاری۔ طارق فضل چودھری کہتے ہیں اعلیٰ سطح حکومتی وفد اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے مابین باضابطہ مذاکرات ہو رہے ہیں۔ بات چیت مظفر آباد میں کی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے نوٹس لیتے ہوئے اعلیٰ سطح کی کمیٹی تشکیل دی۔ کمیٹی میں وفاقی وزراء اور پیپلز پارٹی کی قیادت موجود۔ حکومتی کمیٹی وزیر اعظم کی ہدایت لے کر مظفر آباد پہنچی۔ کمیٹی میں رانا ثناء اللہ، طارق فضل چودھری، امیر مقام احسن اقبال شامل، سردار یوسف، راجہ پرویز اشرف، قمر زمان کائرہ اور سردار مسعود بھی ہمراہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف آزاد کشمیر کے مسائل مذاکرات سے حل کرنے کے لیے پرامید، کہا کہ کشمیری بھائیوں کے مسائل حل کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ مظاہروں کے دوران ناخوشگوار واقعات پر گہری تشویش کا اظہار بھی کیا۔ شفاف تحقیقات کا حکم، کہا کہ پرامن احتجاج ہر شہری کا حق ہے۔ مظاہرین امن و امان کو نقصان نہ پہنچائیں، شہریوں سے پرامن رہنے کی بھی اپیل۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو مظاہرین کے ساتھ تحمل اور بردباری کی ہدایت۔ ایسے عناصر موجود ہیں کہ جو پاکستان کے داخلی امن اور استحکام میں خلل ڈال کے اپنا ایجنڈا اٹھانا چاہیں گے، تو کوئی ایسی صورتحال ہم نہ بنائیں کہ جس سے پاکستان کے مخالفین اس صورتحال کا فائدہ اٹھا سکیں۔ بہت سارے معاملات طے ہو چکے ہیں اور چاند ایک رہ گئے ہیں، پر شکر گزار ہوں وزیر اعظم پاکستان کا کہ انہوں نے بیرون ملک ہوتے ہوئے بھی اس کا فوری نوٹس لیا۔ ہم اس جذبے کے تحت جا رہے ہیں اور ہمیں پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی وہ عوامی ایکشن کمیٹی کے دوستوں کے ساتھ جب ہم بیٹھیں گے تو اس صورتحال میں جو بھی غلط فہمی یا الجھاؤ آیا ہے تو اس کو ہم سلجھا لیں۔ کشمیر میں کچھ عناصر امن سبوتاش کرنا چاہتے ہیں۔ حکومتی کمیٹی کے رکن احسن اقبال کی مظفر آباد روانگی سے قبل میڈیا سے گفتگو، کہا وزیر اعظم کی ہدایت پر عوامی ایکشن کمیٹی کے مطالبات سنیں گے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کہتے ہیں عوامی ایکشن کمیٹی کے زیادہ تر مطالبات تسلیم کر لیے گئے ہیں، جو مطالبات رہ گئے ہیں ان پر بات چیت ہوگی۔ راجہ پرویز اشرف نے کہا کوشش ہے جتنا جلد ممکن ہو صورتحال کو معمول پر لایا جائے۔ رانا ثناء اللہ بولے تشدد سے معاملات الجھتے ہیں، سلجھتے نہیں۔ عوامی ایکشن کمیٹی کے جائز مطالبات کو مانا جائے گا۔ قمر زمان کائرہ کی وزیر اعظم شہباز شریف کی کاوشوں کی تعریف۔ شیری رحمان کا آزاد کشمیر میں عوامی ایکشن کمیٹی سے مذاکرات کا خیر مقدم، کہا کہ تمام مسائل کا حل مذاکرات سے ہی ممکن ہے۔ عوامی ایکشن کمیٹی مصالحت کا مظاہرہ کرے۔ عوامی ایکشن کمیٹی کو اب حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے ساتھ مل کر مسائل کے حل کی جانب بڑھنا چاہیے۔ شر پسندوں کا آزاد کشمیر کے امن سے کھلواڑ، مذاکرات کے باوجود مظاہرین کا سڑکوں پر مارچ، رکاوٹیں کھڑی کر دیں، ٹریفک کا نظام درہم برہم، ملوائیوں کے پولیس افسران کے گھروں پر حملے، گاڑیاں اور سرکاری املاک نظر آتش۔ ہنگاموں میں اب تک ASI سمیت 3 اہلکار شہید جبکہ 100 سے زائد اہلکار زخمی ہو چکے۔ اسلام آباد پولیس اسلام آباد پریس کلب پر ٹوٹ پڑی، اہلکاروں کا صحافیوں پر تشدد، توڑ پھوڑ بھی کی۔ پریس کلب کے کیفیٹیریا سے صحافیوں کو ڈنڈے مار کر باہر نکالا۔ کشمیریوں کے احتجاج کی کوریج کرنے والے صحافیوں پر تشدد۔ اسلام آباد پریس کلب سمیت وکلاء برادری کی واقعے کی شدید مذمت۔ وزیر مملکت طلال چودھری نے پولیس کے رویے پر غیر مشروط معافی مانگ لی، کہا IG اسلام آباد کو متعلقہ اہلکاروں کے خلاف کارروائی کی ہدایت ہے۔ جو واقعہ پیش آیا پولیس اور انتظامیہ کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، مظاہرین کا پیچھا کرتے پولیس اندر آئی تھی، جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی پیمز اسپتال آمد، آزاد کشمیر میں زخمی ہونے والے اسلام آباد اور آزاد کشمیر پولیس اہلکاروں کی عیادت، زخمی اہلکاروں کو بہترین طبی سہولتیں فراہم کرنے کی ہدایت۔ محسن نقوی نے اہلکاروں کے جذبے اور بہادری کو سراہا، کہا پرامن احتجاج ہر کسی کا حق ہے لیکن قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ چند شر پسند عناصر دشمن کی ماں پر آزاد کشمیر کے امن کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
ग्लोबल स्मूथ फ्लोटीला सहूनी बर्बरियत के आगे चट्टान बन गया। सफाक इसराइली फौज का इमदादी काफिले पर हमला। मरकजी कश्ती से बेटा थैम्बक समेत 200 से ज़ायद अफराद को हिरासत में ले लिया। पाकिस्तान के साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद भी हिरासत में लिए जाने वाले अफराद में शामिल। इसराइली हमले के बावजूद फ्लोटीला का सफ़र रवां दवा। काफिले में शामिल कश्तियों की तादाद 40 से कम होकर 30 रह गई। फ्लोटीला गजा से सिर्फ 45 नॉटिकल मील दूरी पर। फ्लोटीला के ऊपर इसराइली ड्रोन्स की परवाज़ें जारी। स्मूथ फ्लोटीला इंतज़ामिया के मुताबिक सेहोनी फौजी कश्तियों पर सवार हो गए। जहाज़ों पर नस्ब कैमरों को भी बंद कर दिया। सफाक इसराइली बहरिया ने काफिले की मरकजी कश्ती को टक्कर मारी। दूसरी कश्तियों को वाटर कैनन से निशाना बनाया। इसराइली फौजियों ने मरकजी कश्ती में दाखिल होकर गिरफ्तारियां की। इसराइली वजारत खारजा का कहना है ग्लोबल स्मूथ फ्लोटीला के मुसाफिरों को यूरोप डिपोर्ट किया जाएगा। स्मूथ फ्लोटीला को बाहिफाजत रोक लिया। गिरफ्तार अफराद को इसराइली बंदरगाह पहुंचाया जा रहा है। हमास ने ग्लोबल फ्लोटीला पर इसराइली हमलों को दहशतगर्दी करार दिया। फ़लस्तीनी मज़ाहमती तंजीम का दुनिया भर से इसराइली जुर्म की मसम्मत का मुतालबा। कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बिरादरी कानूनी और इखलाकी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करे। हमास का कारकुनान और इमदादी कश्तियों के ज़रिए उनके तहफ़्फ़ुज़ और फौरी इक़दामात का मुतालबा। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटीला के साथ गुंडागर्दी इसराइल को महंगी पड़ गई। कोलंबिया ने इसराइली सिफारतकार को मुल्क बदर कर दिया। कोलंबिया के सदर गुस्तावो पेट्रो का इसराइली सिफारती मिशन के बाकी अहलकारों को भी मुल्क से निकालने का हुक्म। कोलंबिया के सदर का इसराइल के साथ आज़ाद तिजारती मुआहिदा ख़त्म करने का ऐलान। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटीला में शामिल ब्राज़ील से ताल्लुक़ रखने वाले थियागो एवेला का इसराइली धमकियों पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, हमारा सफ़र बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हरगिज़ नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ग्लोबल स्मूथ फ्लोटीला पर इसराइली हमले की शदीद मसम्मत। फ्लोटीला से गिरफ्तार अफराद की फौरी रिहाई का मुतालबा। कहा, उन अफराद का वाहिद जुर्म ये था कि वो बेबस और मज़लूम फ़लस्तीनी अवाम के लिए इमदाद ले जा रहे थे। इसराइली फ़ौज ने मुतअद्दिद कारकुनान को गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया। इंसानी हमदर्दी की इमदाद हर सूरत ज़रूरतमंदों तक पहुँचनी चाहिए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि कारकुनान की गिरफ्तारी बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है। फ्लोटीला पर सवार तमाम कारकुनान की रिहाई का भी मुतालबा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने फ्लोटीला पर हमला दहशतगर्दी करार दिया। बोले, कहाँ है अमन का पैगंबर अमरीका, जिसका लाडला इसराइल अहले गजा को इमदाद भी पहुँचने देना नहीं चाहता। क्या यही इंसानियत, जमहूरियत, इंसानी हकूक़ और बैनुल-अक़वामी कानून है? ग्लोबल स्मूथ फ्लोटीला पर इसराइली हमला। मुख्तलिफ ममालिक में एहतजाजी मुजाहरे। यूनान में शहरियों की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। इसराइली जारहियत के खिलाफ शदीद एहतजाज। इटली और तुर्किया में भी मुजाहरे। गजा में फौरी जंग बंदी और इंसानी इमदाद की रिहाई का मुतालबा। पाकिस्तान हर हाल में चीन के साथ खड़ा है। जंगों की बजाय मैशत पर तवज्जो देना होगी। सदर आसिफ अली जरदारी का CGTN को इंटरव्यू। कहा, ज़रिए शोबे में चीन के तजुर्बात से इस्तेफादा करेंगे, जदीद आपाशी तरीके अपनाएंगे। चीन आज बदल चुका है, मैशत मजबूत और आवाम खुशहाल है। CPEC बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का फ्लैगशिप मंसूबा है, जिससे पूरा खित्ता तरक्की करेगा और नौजवानों को रोजगार मिलेगा। पाकिस्तान और चीन का मुस्तकबिल एक दूसरे के साथ जुड़ा है। पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी चीनी सदर शी जिनपिंग और सदर ट्रंप के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रूसी सदर पुतिन से मुलाकात की तैयारियां। सिफारती ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नवंबर में दौरा रूस के मुतवक्के है। रूस रवां बरस वज़ीर आज़म की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से भी मुलाकात होगी। दोनों मुलाकातें 31 दिसंबर से कबल होंगी। सैलाब आया तो मुझे ये लेक्चर दिए जा रहे थे कि दुनिया के आगे हाथ क्यों नहीं फैलाते, आलमी इमदाद क्यों नहीं मांगते। ये जो नॉर्थ पंजाब, साउथ पंजाब, सेंट्रल पंजाब करते हैं ना, ये आपके दोस्त नहीं है। पंजाब को इंशाअल्लाह ताला मैं एक मुट्ठी की तरह जोड़ के रखना चाहती हूँ। आज देखो उन बच्चों को जिनको 9 मई को कहा कि अपने मुल्क पे हमला कर दो, वो बेचारे बातों में आ गए, अपने मुल्क पे हमला कर दिया। और आज देखो अपने बच्चे बाहर बैठे हैं और वो बच्चे जो हैं वो जेलों में रुल रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का मुआफ़ी मांगने से साफ इनकार। मुखालिफिन को एक बार फिर लफ्ज़ी निशाने पर ले लिया। लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए कहा,
पंजाब को जब कोई निशाना बनाएगा तो जवाब दूंगी। बतौर वज़ीर आला अगर मैं पंजाब की बात नहीं करूंगी तो कौन करेगा? इस पर मैं कभी मुआफ़ी नहीं मांगूंगी। सिलाब में मुझे आलमी इमदाद मांगने का लेक्चर दिया गया, कभी अपने अवाम को कशकोल पकड़ने का नहीं कहूँगी। इज़्ज़त नफ्स मजरूर नहीं होने दूंगी। मज़ीद बोली, जो आपको जलाओ घिराओ की तरगीब देगा वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। 9 मई को बच्चों को मुल्क पर हमला करने का कहा गया, खुद के बच्चे बाहर बैठे हैं। हमला करने वाले बच्चे जेलों में लुट गए। जिन मुल्क में इतने टॉपर्स हों उसे कभी सवाल नहीं आ सकता। मखसूस नशिस्तों का केस नज़र-ए-सानी दरखास्तों की मंजूरी का तफसीली फैसला जारी। अदालत ने फैसले में लिखा, मुकम्मल इंसाफ का इख्तियार इस्तेमाल करके PTI को रिलीफ नहीं दिया जा सकता था। आर्टिकल 187 का इस्तेमाल इस केस में नहीं हो सकता था। केस के हक़ाइक़ के तनाजुर में 187 का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 187 का इस्तेमाल करके वो रिलीफ दिया गया जो आइन से बाहर था। अक्सरियती फैसला रिकॉर्ड और आइन के खिलाफ फैसला दिया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह समेत 8 जजेस ने तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देने का फैसला दिया था। बानी तहरीक इंसाफ की कानूनी मुश्किलात बढ़ गईं। बानी बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस मुकदमे की समाअत 3 अक्टूबर तक अडियाला जेल में होगी। बानी PTI के वकला को केस की नई तारीख के हवाले से आगाह कर दिया गया। 3 सितंबर को बानी PTI के वकील गवाह मोहसिन हारून पर जरा करेंगे। बानी PTI से अडियाला जेल मुलाकात आने वालों में से किसी को इजाज़त नहीं मिल सकी। PTI रहनुमा फैक्ट्री नाका से वापस चले गए। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान की मुलाकात। समाजी, सियासी और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला सिंध का कहना था कि पंजाब में हालिया सैलाब से होने वाली तबाहकारियाँ अफसोसनाक हैं। गवर्नर पंजाब बोले, सियासी और समाजी सतह पर ताउन के दरवाजे हमेशा खुले रखने चाहिए। मुलाकात में पीपल्स पार्टी को पंजाब में मज़ीद मजबूत करने के हवाले से भी गुफ्तगू।